series. So this is second video of series. So in this video, we will cover some problems with solutions and their detailed explanations. तो सीरीज का ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम कुछ समस्याएं लेंगे और उनका हल पूरे डिटेल के साथ समझाएंगे. I had solved 4 questions in the last video, and this is the fifth question. So in this question, they have given a series 1, 30, 5, 26, 9, 22, 13, 18, and a blank space. Find what number would come in place of the question mark. So they have given one question mark over here. We have to find the term which is missing over here. And the options are 17, 22, 28 and 90. तो देखिए यहाँ पर ये सीरीज दी गई है और सीरीज है 1, 30, 5, 26, 9, 22, 13, 18 और एक रिक्त स्थान. तो इस रिक्त स्थान पे एक पद गायब है जिसको हमें पता लगाना है और ये 4 यहाँ पर उत्तर दिए हुए हैं. इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा वो छांट के यहाँ पे हमें देखना है. तो अब इसका ये मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं. सो ऑब्जर्विंग द पैटर्न केयरफुली you will observe that this series consists of two different series. I have shown their terms in two different colors for ease of understanding. So, as you see, I have marked the alternate terms with red color. So, 30, 26, 22, and 18. This is one series, and 1, 5, 9, 13, and the next term. This is another series. So, in this one, odd numbers, we find that the terms have been derived as 1 plus 4 is equal to 5, 5 plus 4 is equal to 9, 9 plus 4 is equal to 13, 13 plus 4 is equal to 17. And the other terms which are marked with red are 30, then 30 minus 4 is equal to 26, 26 minus 4 is equal to 22, 22 minus 4 is equal to 80. तो देखिए जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया है ये दो श्रेणियां अलग अलग एक साथ चल रही है. एक तो एक काले रंग से मैंने दिखाई है, दूसरी लाल रंग से. तो काले रंग से जो सीरीज दिखाई है इसके अंदर आप देखेंगे कि सारे ही पद विषम संख्याएं हैं और इनमें अंतर 4 का है. तो अगर 1 में 4 जोड़ दें तो 5 आ जाएगा, 5 में 4 जोड़ दें तो 9 आ जाएगा, 9 में 4 जोड़ दें तो 13 आ जाएगा, इसके बाद 13 में अगर 4 जोड़ दें तो 17 आ जाएगा. इसी तरह जो पद लाल कलर से मैंने यहाँ दिखाए हैं वो इस तरह हैं कि हर पद में 4 घटा दिया गया है तब अगला पद आ रहा है. यानी 30 में से 4 घटाया तो 26, 26 में से 4 घटाया 22, 22 में से 4 घटाया 18. तो यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं 1, 5, 9, 13, तो अगला पद भी इसी सीरीज का आना चाहिए यानी विषम संख्याओं वाला. तो ये जैसे हमने यहाँ कैलकुलेट किया था कि 13 के बाद 17 आना चाहिए तो अगला पद जो है 17 होना चाहिए और सही उत्तर है ए 17. So this is question 6. Find the number which will come in the place of the question mark in the given series. 4, 18, sign of interrogation, 100, 180, 294 and 448. And the given options are 62, 86, 38, 48. तो यहाँ पे देखिए ये प्रश्न दिया गया है कि ये कुछ नंबर हैं 4, 18, प्रश्नवाचक चिन्ह 100, 180, 294 और 448. तो ये जो एक रिक्त स्थान है जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया गया है यहाँ पर एक पद गायब है जिसे हमें मालूम करना है.
और ये चार ऑप्शन दिए गए हैं 62, 86, 38 और 48। लेकिन यहाँ पे क्लियर तो नजर नहीं आ रहा है, कांस्टेंट डिफरेंस भी नहीं है, यानी एक ही अंतर नहीं है सारे पदों में, किसी खास क्रम में गड़बड़ भी नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज हमें नजर आती है कि ये दो का स्क्वायर है, ये तीन के स्क्वायर से दो गुना है, ये 10 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब इस सीरीज में वर्ग और घन का कुछ प्रयोग है। So as we observe, they don't have a typical difference pattern or something else like that. But one thing is clear. This is square of 2 and this is double of square of 3 and this is 10 square. So there should be some relation between these terms which are related to square and cubes. So let us calculate now. So these terms are 480 and one missing term 100, 180, 294 and 448. So as I have already told that we find that there should be some relation between these terms related to squares and cubes. So first of all, I took the term 1, that is 4. So it was very easy to calculate how can we get 4 by using cubes and squares. So if we take cube of 2 and square of 2, the difference is 4. And if we take cube of 3 and square of 3, we get the difference 18. So this is the clue we were looking. So the next term should be 4 cube minus 4 square, that is 64, minus 16, that should be 48. And the next term should be 5 cube minus 5 square, that is 125, minus 25, that is 100. That was the term. And 6 cube minus 6 square, 216 minus 36, that is 180. 7 cube minus 7 square, that is 343 minus 49, that is equal to 294. And 8 cube minus 8 square is equal to 512 minus 64 is equal to 448. That means the missing term was 48. तो जैसा देखने से हमें महसूस हो रहा था कि इस प्रश्न में वर्ग और घन का कुछ प्रयोग जरूर है। तो हमने पहले सबसे छोटा पद जो था 4, इसको वर्ग और घन से कैसे लाया जा सकता है उसकी कोशिश की, तो हमें पता चला 2 के घन में अगर 2 का वर्ग घटा दिया जाए, यानी 8 में 4 घटा दिया जाए तो 4 बनता। और अगला पद इससे बड़ा था तो हमने 3 लिया, तो 3 के घन में 3 का वर्ग घटाया, यानी 27 में से 9 तो 18 मिल गया। तो हमारा काम यही बन गया। यही सीक्वेंस हमने आगे भी जारी रखी। अब यहाँ पे एक एक पद हम बढ़ाते जा रहे हैं। 2 था, 3 लिया था, अब 4 कर दिया, तो 4 का घन माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 16, तो हमें 48 मिल गया। तो 5 का घन और 5 का वर्ग 125 और 25, तो इनका अंतर 100 मिला। 6 का घन और 6 का वर्ग 216 और 36, तो इनका अंतर 180। 7 का घन और 7 का वर्ग 343 और 49, इनका अंतर 294। तो 8 का घन और 8 का वर्ग 512 और 64, तो इनका अंतर 448। इस तरह से हमें पूरी सीरीज मिल गई है। इसमें बाकी सारे टर्म ठीक है, बीच का जो एक मिसिंग था उसकी जगह है, इसका मतलब ये है 48 होना चाहिए। तो ये स्पेशल वाचक चिन्ह की जगह 48 होना चाहिए, जो कि हमारे दिए हुए प्रश्न में डीवा ऑप्शन था, यानी D48 यही सही उत्तर होगा। So in this question, they are asked, find the number that will come in the place of the question mark in the given series. And the series is 11, 12, 15, 20, 27, and a space, which they have marked with sign of interrogation. And the options for this place are 36, 35, 38, and 40. So we have to choose one of the answers out of these four, and that should cover
दिस प्लेस। तो यहाँ पे देखिए एक सीरीज दी गई है जिसके पद हैं 11, 12, 15, 20, 27 और एक प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ लगा दिया गया है, यानी यहाँ पे एक पद खाली है, वो हमें ढूंढना है क्या। और इस पद के लिए इन्होंने 4 ऑप्शन दिए, 36, 35, 38, 41। इनमें से एक यहाँ पे फिट होना चाहिए। अब कौन सा फिट होगा, क्यों फिट होगा, वो हमें निकालना है। तो अब हम आगे चलते हैं, इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक खास बात नजर आ रही है। अगर इन दोनों का फर्क लें तो ये 1 है, इन दोनों का लें तो 3 है, इन दोनों का लें तो 5 है। तो यानी ये विषम संख्याएं मिल रही हैं। तो इन दोनों के बीच में 1 मिला, यहाँ 3 मिला, यहाँ 5, यहाँ 7। तो यानी 1, 3, 5, 7 इन अंतरों से ये पद अरेंज है। तो बड़ा साफ है, कुछ इसमें सोचने की जरूरत नहीं है कि सारे विषम संख्याएं हैं। 1, 3, 5, 7 तो अगला 9 होना चाहिए। तो यानी 27 में अगर हम 9 जोड़ दें तो 36 आ जाएगा। वो 36 जो है अगला पद होगा और ए 36 उसमें ऑप्शन दिया हुआ भी है, यानी सही उत्तर ए होगा। So in this question, the pattern is very clear. All the terms are in increasing order, and if we find the difference between them, we find that 12 minus 11 is equal to 1, and 15 minus 12 is equal to 3, and 20 minus 15 is equal to 5, and 27 minus 20 is equal to 7. So all the differences are odd numbers. They are coming in same order as we find them in the counting numbers. That means the next number should be 9, because 1, 3, 5, 7, then 9 comes. Therefore, if we add 9 to the last number 27, we find 36. That means the missing term should be 36, and they have given the option A 36. So that should be the right answer. So this is question number 8. Find the number that will come in the place of question mark in the given series 14, 25, 47, 91, 170, and one blank space. And they have written sign of interrogation in this blank space. So this place should be filled by any one of these 4 options. तो यहाँ पे देखिए ये श्रेणी दी है या श्रृंखला दी है और इसमें एक पद रिक्त है, खाली है। इसमें इन 4 में से कोई ना कोई नंबर सही फिट बैठना चाहिए। तो अब हमें वही गणना की करना पड़ेगी कि कौन सा पद यहाँ पे आएगा। तो देखिए सबसे पहला काम जो करके हमेशा देखना चाहिए, वो जितने भी पद दिए हैं अगर इनमें अंतर है तो वो अंतर किस तरह का है वो पता लगाना चाहिए। वो बढ़ते क्रम में है, घटते क्रम में है, या कोई खास नंबर है, उतने से ही सारों के बीच में अंतर है। तो अब देखिए वो हम आगे गणना करेंगे। तो देखिए ये पद दिए हुए थे 14, 25, 47, 91, 189 और इसके बाद वाला पद हमें मालूम करना था। तो देखने से वही पता चलता है कि अंतर तो है, मगर अंतर क्या है अब वो हम यहाँ गणना की। तो देखिए 25 में से 14 अगर हमने घटाया तो 11 बचा, 47 में से 25 घटाया तो 22 मिला, 91 में से 47 घटाया तो 44 मिला, 179 में से 91 घटाया तो 48, ओ सॉरी 88 मिला। तो ये अंक हमें मिले और इसमें खास आपस में रिश्ता है। ये देखिए 11, 22, 44, 48 यानी हर एक के बाद आने वाला अंतर जो है पिछले वाले का 2 गुना होता जा रहा है। 11 का दुगुना 22, 22 का दुगुना 44, 44 का दुगुना 88। यानी अगला अंतर इसका दुगुना होना चाहिए और इसका दुगुना होगा 176।
तो अगर 176 हम पिछले पद में जोड़ दें यानी 179 में, तो 179 और 176 मिलके बनते हैं 355, यानी अगला पद 355 होना चाहिए और ये ऑप्शन सी था, यानी सी वाला जो उत्तर है वही सही है। So in this pattern, we see that the numbers are 14, 25, 47, 91, and 179. And if we subtract these numbers with the consecutive terms, we find that if we subtract 14 from 25, 14 from 25, we get 11. And if we subtract 25 from 47, we get 22. If we subtract 47 from 91, we get 44. And if we subtract 91 from 179, we get 88. And it is a very good and clear sequence. 11 and its double is 22, its double is 44, its double is 88. Yani each difference is multiplied by 2. Therefore, the next difference should be double of 88. So, double of 88 is 176. That means if we add 176 into 179, we will get the next term. So, 179 plus 176 is equal to 355. That means 355 should be the missing term. And we find that option C is 355. That means C is the right answer. Question 9. Find the number which will come in the place of the question mark in the given series. And the series is 4, 6, 9, 14, 21, and blank space. So the options are given 28, 32, 34, 40. So we should find which number out of these four should be at this place. तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया था कि ये सीरीज दी गई है 4, 6, 9, 14, 21 और रिक्त स्थान। इस रिक्त स्थान पे इन चार दिए हुए नंबरों में से कौन सा आना चाहिए, ये पूछा गया है। तो जैसा देख के पता चलता है 4, 6, 9, 14, 21, तो ये बढ़ते हुए क्रम में। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो ये कि हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म में से हम पीछे वाला घटाते जाए। तो दोनों तरीके यहाँ मैंने करके दिखाए हैं, एक तो घटा के दिखाया है और दूसरे जो देख के नजर आ रहा था कि 4 में 2 जोड़ने पे 6 आ जाएगा, 6 में 3 जोड़ने पे 9, मतलब है सेम चीज। तो यहाँ पे भी देखिए 2, 3, 5, 7, 11 ये नंबर्स मैंने लिए। 7 तक तो यहाँ पे देखिए मौजूद है, 14, 7, 21 और यहाँ पे 21 में से 14 अगर आप घटाएं 7 बचेंगे, तो चाहे घटा के निकालिए या ऐसे आप हिसाब लगा लीजिए। So the numbers are 4, 6, 9, 14, 21, and the next number is required. So as we see, 4 plus 2, 6, 6 plus 3, 9, 9 plus 5, 14, 14 plus 7, 21. So we are adding the prime numbers 2, 3, 5, 7. All these are prime numbers. So the next number should be next prime number, and that is 11. So why we are taking that these are prime numbers? Because these are odd numbers, but except 2. 2 is not a odd number, but it is prime number. That means the difference should be a prime number. So we can't take 9. So after 7, 9 comes, which is an odd number, but we should take the next prime number, that is 11. So 21 plus 11 is equal to 32. So next number should be 32. तो देखिए जैसे यहाँ मैंने घटा के दिखाया है कि ये जो इनके अंतर हैं ये 2, 3, 5, 7 है। तो इसमें 3, 5, 7 ये दो विषम संख्याएं हैं, मगर दो सम संख्या है।
तो अगला नंबर क्या होगा, ये सोचने के लिए एक तो तरीका ये हो सकता था कि अगला विषम संख्या जो है वो 9 है, वो होना चाहिए। मगर ये 2 जो है, इसने हमें ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि 2 अगर है तो ये सारे फिर कौन से नंबर हैं। ये विषम संख्याएं नहीं है, बल्कि ये अभाज्य संख्या है। 2, 3, 5, 7। अगली अभाज्य संख्या 11 होगी। तो 11 को अगर 21 में जोड़ देंगे तो 32 मिलेगा, यानी 32 ही आपका आंसर होगा। तो 32 जो है ये बी सीरियल पे है, इसलिए B32 इज द राइट आंसर। Question 10. Find the number which would come in place of question marks 3, 4, 7, 8, 11, 12 and 2 blank spaces. For blank spaces, they are given sign of interrogation. That means they required 2 numbers in these blank spaces. And they have provided the answers in pairs also. So the options are 13, 14, 18, 20, 15, 16, 19, 20. तो देखिए यहाँ पे ये सीरीज दी है और इस सीरीज के बाद 2 खाली स्थान छोड़े गए। तो 3, 4, 7, 8, 11, 12 और 2 खाली स्थान, तो यानी 2 नंबर और चाहिए। तो यहाँ पे भी जो उत्तर दिए हैं वो भी जोड़ों में है, तो इनमें से कोई एक जोड़ा है जो यहाँ पे रखा जाएगा। तो अब हमें ये मालूम करना है कि कौन सा जोड़ा होगा। So explanation is just like that. 3, 4, 7, 8, 11, 12. As we observe these numbers, this is a hybrid series which is formed from the combination of 2 series. So as we observe that 3, 4, 11, these are odd numbers, and 4, 8, 12, 4, 8, 12, these are even numbers, and they are coming on alternate basis. So if we subtract odd numbers, odd consecutive numbers, then we get 7 minus 3 is equal to 4 and 11 minus 7 is equal to 4, any same difference. And similarly, if we subtract consecutive even numbers, 8 minus 4 is equal to 4 and 12 minus 8 is equal to 4. So the difference is always 4. So it is very easy to get the next 2 numbers because we have just to add 4 in 7 and 8. Sorry, in 11 and 12, because last 2 numbers were 11 and 12. So 11 plus 4 is equal to 15 and 12 plus 4 is equal to 16. तो यहाँ पे देखिए मैंने करके दिखाया है कि 11 में 4 जोड़ने पे 15 आता है और 12 में 4 जोड़ने पे 16। क्यों? क्योंकि देखिए बीच में ये 3 विषम संख्याएं हैं और 3 सम संख्याएं हैं, और अगर हम अंतर देखते हैं तो 7 में से 3 घटाने पे भी 4 आता है और 8 में से 4 घटाने पे भी 4 आता है। इधर 11 में से 7 घटाने पे भी 4, 12 में से 8 घटाने पे भी 4, यानी हर दशा में सम में से सम और विषम में से विषम संख्या का अंतर अगर हम देखेंगे वो 4 ही आएगा। तो इसलिए अंतिम 2 संख्याएं जो हैं इनमें हमें 4 ही जोड़ना है। तो 11 और 4 15 होता है और 12 4 16 होता है। तो यानी अंतिम 2 संख्याएं होंगी 15 और 16, 15 और 16। तो सी यानी 15 16 is the right answer. So in this question, they have given that find the number that is wrong in the given series 2, 3, 12, 37, 86, 166 and 288. So this is a new type of question because they are not asking any term. They are asking which is the wrong term out of this series. So deliberately they have given some wrong answer. तो देखिए ये एक अलग तरह का सवाल है। यहाँ पे ये नंबर जो दिए गए थे 2, 3, 12, 37, 86, 166, 288, ये कह रहे हैं इसमें से कोई नंबर गलत है। अब क्यों गलत है उसका लॉजिक हमें ढूंढना है। क्या पैटर्न था यहाँ पे, क्या इसका देख ये जो कैलकुलेट की है सीरीज किस तरह से की है वो हमें मालूम करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि गलत कौन सा है।
यानी कोई एक गलत है, यानी बाकी सब में कोई एक गुण जो है वो एक जैसा है। और नंबर दिए हुए हैं 2, 12, 37 और 166। इनमें से कौन सा गलत है वो हमें पता लगाना है। तो देखिए, इसको पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो ये देखिए, मैंने सारे नंबर जो हैं इनमें आपस में घटा के देखा। तो यहाँ पे नंबर ये दिए हुए थे, तो 3 माइनस टू इज इक्वल टू 1, 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9, 37 माइनस 12 इज इक्वल टू 25, 86 माइनस 35 इज इक्वल टू 49, 166 minus 86 is equal to 80, 288 minus 166 is equal to 120। तो यहाँ देखने पे क्या पता चलता है कि जो क्रम से संख्याएं दी हुई हैं, इनका अगर अंतर ज्ञात किया जाए तो इस तरह से आ रहा है। पहले दो को लिया तो यानी 3 में से 2 घटाया 1 आया, 12 में से 3 घटाया 9 आया, 37 में से 12 घटाया 25, 86 में से 37 घटाया 49, 166 में से 86 घटाया 80, 288 में से 166 घटाया 122। तो देखने वाली बात यह है कि शुरू में जो नंबर्स आ रहे थे 49 तक, तो ये देखिए 1, 9, 25 और 49, ये चारों वर्ग हैं। काहे कि ये 1 का और ये 3 का, ये 5 का और ये 7। 1 का वर्ग 1 है, 3 का वर्ग 9 है, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49। तो अगला 9 का वर्ग 81 होना चाहिए था, क्योंकि ये सारी देखिए विषम संख्याओं के वर्ग हैं। तो अगली विषम संख्या 9 होती है, तो यानी 81 डिफरेंस आना चाहिए था, यानी एक कम है। तो इसका मतलब क्या है, ये 166 जो लिया गया है ये एक कम लिया है, इसकी जगह 167 होना चाहिए। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे 288 में से 166 घटाया तो एक बढ़ती आ रहा है, इसीलिए कि चूंकि ये कम है। तो अगर ये 167 होगा तो ये भी 121 आ जाएगा, 121 11 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारी जो सीरीज है फिर एक जैसी हो जाएगी, इसकी वजह से सीरीज डिस्टर्ब हो रही है। तो as we observe that we are getting squares of all odd numbers 1, 9, 25, 49, but after that this one 80 and 122 are not perfect squares. But the next number after 80 is 81, that is a square. That means this 167 should be one more. That means it should be 167. Then we will get 81. And similarly, if we subtract 167 from 288, we will get 221. That is square of 11. So if we do this correction, that means if we replace 167 by 167, then the series will be smooth. It will be all the squares of odd numbers in their differences. यानी डिफरेंस में सारी ही जो संख्याएं आएंगी वो ऐसी आएंगी जो कि विषम संख्याओं के वर्ग। तो इसलिए ठीक करने के लिए हमें ये नंबर जो है 166 ये नहीं होना चाहिए, इसकी जगह 167 होना चाहिए। तो इन्होंने पूछा था कि गलत नंबर कौन सा लिया गया है, तो यही नंबर गलत है। दैट मीन्स D166 is the wrong number due to which the series is not smooth. This is another way to solve the same problem. That means to find out which term is wrong. So for that purpose, we have calculated now this way. That means 2 and after 2 there is 3. So 2 plus 1 square is equal to 3. And 3 plus 3 square is equal to 3 plus 9, that is 12. And 12 plus 5 square, that is 25. So 12 plus 25 is equal to 37. 37 plus 7 square, that is 37 plus 49 is equal to 86. And similarly, we will get 86 plus 9 square because the next odd number is 9. So 9 square is 81. So sum of 86 plus 81 is 167. So 167 plus 11 square because next odd number is 11.
So it should be 167 plus 121, that means 288. तो देखिए यहाँ पे हमने ये नया तरीका ढूंढा इसको चेक करने का। तो यहाँ पे जैसे पहला नंबर 2 दिया था, दूसरा 3 दिया था, और यहाँ पे 3 और 12 दिया था, 9 का फर्क था। तो ये तो हमें दिख रहा था कि 1, 9, 25 ये सब जो है वर्ग संख्याएं हैं। तो हमने क्या किया, 2 में 1 का वर्ग जोड़ा तो 3 आ गया, 3 में 3 का वर्ग जोड़ा तो 12 आ गया, 12 में 5 का वर्ग जोड़ा तो 37 आ गया, 37 में 7 का वर्ग जोड़ा तो 86 आ गया, 86 में 9 का वर्ग जोड़ा तो 167 आ गया, और यहाँ दिया हुआ था 166, यानी यही नंबर गलत दिया हुआ है। तो 167 में 11 का स्क्वायर जोड़ा तो 167 प्लस 121 ये हो गया 288। तो बाकी सब देखिए नंबर ठीक आ रहे हैं, अलावा इसके 167। तो यही नंबर इन्होंने गलती से 166 ले लिया, ये 167 होना चाहिए था, अर्थात ये नंबर गलत लिया गया है, यानी डी आंसर जो है वही सही है, यानी ये गलत संख्या दी गई। Find the number which would come in place of question mark. 81 is to 101 is to 121 is to blank space. So this is new type of questions. Two ratios are given, and according to these ratios, we have to find out which should be this number, and the options are these. So as we observe, 81 is a square, 121 square, but this number is not a square. So what is the relation between 81 and 101, that we have to find out. Similarly, this one is a square, so this square should be related somehow to the next number. तो यहाँ पे देखिए ये तीन संख्याएं दी गई थी, और 81 और 101 के बीच में जो अनुपात है वही अनुपात 121 और अगली संख्या के बीच में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ समान अनुपात का निशान दिया गया है। अब ये संख्या इन चार में से कोई होना चाहिए। अब देखने से हमें पता चल रहा है ये वर्ग है, ये वर्ग है, मगर ये वर्ग नहीं है। तो आखिर इसमें क्या रिश्ता है वो हमें देखना पड़ेगा। तो देखते हैं कि कैसे आया है। तो देखिए यहाँ पे 81, 101, 121 इनमें क्या रिलेशन है वो अब हम देखते हैं। तो 81 इज द स्क्वायर ऑफ 9 and 101 is nothing but 9 plus 1 square plus 1, yani 10 square plus 1, because this is 1 more than 100 and 100 is a square of 10. So likewise 121 is nothing but square of 11. So next term will be 11 plus 1 whole square plus 1. That means 12 square plus 1. And 12 square is equal to 144. 144 plus 1 is equal to 145. That means this number should be 145. तो देखिए जैसा देखने से पता चलता है 81 9 का वर्ग है और 101 इसका इससे क्या संबंध है। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे 101 जो है ये 10 के स्क्वायर से एक ज्यादा है। 10 का वर्ग जो है वो 100 होता है, तो 9 और 1 मिलके 10 हो जाएंगे, तो 10 का वर्ग और उसमें एक जोड़ दिया तो 101 हो जाएगा। तो ये रिलेशन है इसके बीच में, यानी 9 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 अगर कर देंगे हम तो ये 101 हो जाता है। तो यही स्कीम अब हम अगले नंबर में भी लगाएंगे। यहाँ 11 का स्क्वायर दिया था, तो यही रिश्ता यहाँ भी होना चाहिए, यानी 11 में एक जोड़ने पे वो जो वर्ग आएगा उसमें एक जोड़ने पे अगला नंबर आना चाहिए। तो 11 और 1 12, 12 का वर्ग हो जाएगा 144, 144 और 1 145, यानी ये खाली स्थान जो है ये संख्या 145 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, दिस इज सिमिलर टू द क्वेश्चन 12, but the difference is that find the number which would come in place of question mark. So what should be on this place? And as we observe, this is 11, this is 11 square, this is 15. So this should also be 15 square. But the options are given 169, 196, 225 and 256.
So 11 square is equal to 121 and 15 square is equal to 225. So the missing number is 225, which should come at this place. तो यहाँ पे जैसा देखने से पता चलता है, बहुत आसान सवाल था ये। तो 11 का वर्ग 121 है और 15 का वर्ग 225 होगा, क्योंकि यहाँ जो रिश्ता है वही यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि समान अनुपात का निशान दिया हुआ है। तो इसका वर्ग ये है, तो इसका वर्ग यहाँ आना चाहिए। तो 15 का वर्ग 225 होता है, जो इस स्थान पे होना चाहिए। यानी इसका ऑप्शन सी 225 ही सही उत्तर होगा। Find the number which would come in place of question marks 2, 4, 8, 10, 14, and this blank space where sign of interrogation is there. And these are the four numbers out of which we should place this number. So now we have to calculate how this number should we get. तो यहाँ पे देखिए ये नंबर्स दिए गए हैं 2, 4, 8, 10, 14 और अगला खाली स्थान। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा वो इनमें से चुनना है। तो कौन सा होना चाहिए वो देखने के लिए हमें हिसाब किताब लगाना होगा कि आखिर ये सीरीज किस तरह दी है। चलिए आइए गणना करते हैं इसकी। तो यहाँ पे देखिए ये नंबर जो है, दो में अगर हम 2 जोड़े तो 4 आ जाता है, 4 में 4 जोड़े तो 8 आ जाता है, लेकिन 8 के बाद फिर 10 है, तो यानी 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। फिर 10 के बाद 14 है, तो 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 आएगा। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले स्थान पे 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 2, फिर 4, फिर 2 आना चाहिए, यानी 14 और 2 16 आना चाहिए। इसलिए उत्तर 16 होगा, यानी ए ऑप्शन, ए 16। So as we observe that we have to add 2 to 2 to get 4 and 4 to get 8 and then 2 to get 10 and then we have to add 4 to get 14. So the next number should be 2 because the 2 and 4 are getting added alternatively. The first case, third case, and fifth case should be 2, and second and fourth place it should be 4. So alternatively they are changing. One time 2 adding, next time 4 is adding, then 2 adding, then 4 adding. That means 14 plus 2 is equal to 16 should be the next number. That is option A. That means option A is the right answer. Find the number which would come in place of question marks 2, 4, 8, 10, 14 and this blank space where sign of interrogation is there. And these are the four numbers out of which we should place this number. So now we have to calculate how this number should we get. तो यहाँ पे देखिए ये नंबर्स दिए गए हैं 2, 4, 8, 10, 14 और अगला खाली स्थान। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा वो इनमें से चुनना है। तो कौन सा होना चाहिए वो देखने के लिए हमें हिसाब किताब लगाना होगा कि आखिर ये सीरीज किस तरह दी है। चलिए आइए गणना करते हैं इसकी। तो यहाँ पे देखिए ये नंबर जो है, 2 में अगर हम 2 जोड़े तो 4 आ जाता है, 4 में 4 जोड़े तो 8 आ जाता है, लेकिन 8 के बाद फिर 10 है, तो यानी 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। फिर 10 के बाद 14 है, तो 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 आएगा। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले स्थान पे 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 2, फिर 4, फिर 2 आना चाहिए, यानी 14 और 2 16 आना चाहिए। इसलिए उत्तर 16 होगा, यानी ए ऑप्शन, ए 16। So as we observe that we have to add 2 to 2 to get 4 and 4 to get 8 and then 2 to get 10 and then we have to add 4 to get 14. So the next number should be 2 because the 2 and 4 are getting added alternatively. The first case, third case, and fifth case should be 2, and second and fourth place
it should be 4. So alternatively, they are changing. One time 2 adding, next time 4 is adding, then 2 adding, then 4 adding. That means 14 plus 2 is equal to 16 should be the next number. That is option A. That means option A is the right answer. Find the number which would come in place of question mark 18964 and the next. That is sign of interrogation. So we have to find out how out of these four numbers which number should be there. तो यहाँ पे ये नंबर दिए हुए हैं 1, 8, 9, 64 और ये प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह इन चारों में से कोई संख्या आना चाहिए। तो देखते हैं कौन सी आएगी। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 1, 8, 9 तो 1, 8, 9, 64 ये संख्याएं दी हुई थी और अगली पूछी थी। तो एक जो है वो 1 का वर्ग है और 8 जो है वो 2 का घन है। 9 जो है वो 3 का वर्ग है। 4 जो ये 64 जो है ये 4 का घन है। तो अगला देखिए यहाँ पे एक बार वर्ग कर रहे हैं, इसके बाद बीच बीच में घन कर रहे हैं। वर्ग घन वर्ग घन, तो अगला वर्ग आना चाहिए। तो यानी 5 का वर्ग यानी 25। तो अगली संख्या 25 होना चाहिए, यानी ऑप्शन सी 25। तो एज वी ऑब्जर्व 1 is square of 1 and 8 is cube of 8. 9 is square of 3 and 64 is cube of 4 and next number should be 25. As we observe, so this one is square, this one is square, this is cube, this is cube. So alternatively, they are using square and cube. So the last one which was given was cube. So next should be square. And one number has been added to each previous number. That means 1, 2, 3, 4, 5. They are taken like that. So 1 square, 2 cube, 3 square, 4 cube, 5 square. तो 5 स्क्वायर यानी 25 यहाँ पे आएगा। तो देखिए देखने की बात खास क्या है कि यहाँ पे पहला 1 का वर्ग था, दूसरा 2 का घन था, तीसरा 3 का वर्ग था, चौथा 4 का घन था, पांचवा वर्ग। तो वर्ग जो है ये पहले स्थान पे लिए गए तीसरे अंक में और पांचवें, और दूसरे और चौथे में घन दिए गए। तो इसलिए आंसर सी 25। Find the number which would come in place of question marks 6, 11, 18, 27 and sign of interrogation. So we have to find which number should be at this place, and the numbers given are 33, 40, 38 and 81. तो ये नंबर यहाँ पे दिए हुए थे सीरीज में 6, 11, 18, 27 और पांचवा स्थान जो है ये खाली है, इसकी जगह प्रश्नवाचक चिन्ह है। इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह इन 4 अंकों में से कोई एक रखना है। किस तरह से आएगा वो अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए here every term is squares starting from 2 with addition of। तो देखिए यहाँ पे जितने भी नंबर लिए गए थे ये स्क्वायर वाली संख्याओं के करीब है। देखिए 6 जो है ये 4 के करीब है, ये 9 के करीब है, ये 16 के करीब है, ये 25 के करीब है। जो वर्ग है उनसे 2 ज्यादा है ये सारे, यानी 2 square plus 2 is equal to 6, 3 square plus 2 is equal to 11, 4 square plus 2 is equal to 18, 5 square plus 2 is equal to 27. So next number should be 6 square plus 2. That should be 38. तो देखिए यहाँ पे जितनी भी ये अंक लिए गए हैं ये इस क्रम में है कि पहला जो है वो 2 का वर्ग लेके उसमें 2 जोड़े तो 6 आ जाता है। फिर 2 की जगह 3 हो गया, 3 का वर्ग और उसमें 2 जोड़ दिया, तो यहाँ सब जगह 2 ही जोड़ा जाएगा और यहाँ अंक एक एक बढ़ता जा रहा है। 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, तो अगला 6 होना चाहिए। 6 का वर्ग प्लस 2 यानी 38। तो आंसर जो है
तो C 38 होगा। इसका दूसरा मेथड भी हो सकता है, अगर हम 11 में से 6 घटाएं तो 5 आता है, 18 में से 11 घटाएं तो 7, 27 में से 18 घटाएं तो 9। ऑल आर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो ये सभी आगे पीछे आने वाली विषम संख्याएं हैं। तो अगला विषम संख्या क्या होगी? 9 के बाद 11 आता है, तो अब लास्ट नंबर जो था इसमें 11 अगर जोड़ दें तो 38 आ जाएगा। So all these numbers are 6, 11, 18, 27. So if we take difference of consecutive numbers, that means 11 minus 6 is equal to 5, 18 minus 11 is equal to 7, 27 minus 18 is equal to 9. All are consecutive odd numbers. So next consecutive odd number is 11. That means 11 should be added to 27 to get the next number. That means 27 plus 11 is equal to 38 is the required number. And C 38 is the right option. तो C 38 जो है सही उत्तर होगा। तो देखिए, अगर वहां जो घटाया था वो देखने में आपको कोई परेशानी हुई हो तो ये अलग अलग भी मैंने घटा के दिखा दिया है। 11 में से 6 गए, 5 18 में से 11 गए, 7 27 में से 18 गए 9। तो ये सारी विषम संख्याएं आ रही हैं। अगली विषम संख्या 11 होती है जिसे 27 में जोड़ देंगे तो 38 आ जाएगा। सो दिस इज द सेम मेथड बट इट हैज बीन shown in an elaborate way. So if you had any confusion to understand that, you can understand the same thing here. 11 minus 6 is equal to 5, 18 minus 11 is equal to 7, 27 minus 18 is equal to 9. All these are prime consecutive numbers. So next consecutive prime number is 11. So if we add 11 to the last number, that is 27, so we'll get 38. That will be the answer. So find the number that would come in place of question mark, 3, 4.5, 9, and then sign of interrogation or blank space. So in this blank space, we have to find out one number out of these four. So which is the correct answer which should be fitted into this place. तो यहाँ पे ये तीन संख्याएं दी हुई थी, ये खाली स्थान दिया हुआ था। तो पहला नंबर है 3, दूसरा है 4.5, तीसरा है 9। तो चौथा क्या होगा, वो इन चार में से पता करना। तो ये थोड़ी अलग टाइप की सीरीज मालूम होती है। अब इसको देखते हैं कैसे कैलकुलेशन किया जाए। तो देखिए, इसका सीधा तरीका यह है कि अगर 3 में 1 से गुणा करें 3 आएगा, और 3 में अगर 1.5 से गुणा करें 4.5 आएगा। यानी 4.5 को अगर 3 से भाग दें तो भी 1.5 आएगा। तो यानी ये समझ लीजिए, या तो 1.5 से गुणा करें या इसको इससे भाग दें तो ये 1.5 आ जाता है। अगर इससे इसको भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। यानी 2 से इसको गुणा करने पे 9 आ जाएगा। तो दोनों मेथड मैंने करके दिखा दिए हैं। तो 3 का 3, 3 को 1.5 से गुणा किया 4.5, 4.5 को 2 से गुणा किया 9। तो अगला जो है देखिए, यहाँ पे 1, 1.5, 2, तो अगला 2.5 होना चाहिए, यानी 2.5। तो 9 into 20, 2.5 is equal to 22.5. तो 22.5 ही सही उत्तर होगा। So there are only 3 numbers, and as we observe, this is 1.5 times of 3, and this is 2 times of this number. So the first number is 3 into 1, that is 3. And next number is 3 into 1.5 is equal to 4.5. And next number is 4.5 into 2, yani 9. So as we observe that the product is changing with the numbers. So in the first case, we had multiplied by 1. The next number we have multiplied by 1.5, and the next 2. So the next number should be 2.5, and that should be multiplied to the last number. That means 9 into 2.5 is equal to 22.5. So this is the right answer which should be placed on this place. So the right answer is A, 22.5. Find the number which would come in place of question mark.
3, 5, 7, 9, 11, and sign of interrogation. And this place should be filled with these numbers. So we have to choose one out of these four to place on this place. तो यहाँ ये संख्याएं दी गई थी 3, 5, 7, 9, 11 और यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा वो ढूंढना था और दी हुई संख्या है 13, 17, 19, 12। तो सही उत्तर क्या होगा अब इसकी गणना हम करके देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको गणना करने के लिए पहला तरीका तो यह है कि इट इज सिंपली जस्ट डिफरेंस ऑफ टू। तो जैसा देखने से पता चलता है सब में ही दो का अंतर है। तो हम अगर दो दो जोड़ते जाएं पिछले नंबर में तो हमें नंबर मिल जाएंगे। वी ऐड टू टू ईच नंबर then you'll get the next number. So 3 plus 2 is equal to 5, 5 plus 2 is equal to 7, 7 plus 2 is equal to 9, 9 plus 2 is equal to 11, and 11 plus 2 is equal to 13. That will be the next number. So we have added 2 to each number to get the next number. तो अब इसी का एक तरीका और भी हो सकता है। तो वो क्या होगा यहाँ देखिए कि if we take 2 square minus 1 square we get 3. That means we have to find the differences of squares. So 2 square minus 1 square is equal to 3. 3 square minus 2 square is equal to 5 because this is 9 minus 4. This is 4 minus 1. 4 square minus 3 square is equal to 16 minus 9, that is 7. 5 square minus 4 square, that is 25 minus 16 is equal to 9. 6 square minus 5 square, that is 36 minus 25, so it will be 11. Similarly, 7 square minus 6 square is equal to 30. So 30 should be the answer. So as you observe, we are increasing one by one each number, and there is difference of one number. So this is 2 square, this is 1 square. So it has increased to 3, this has increased to 2. So we are increasing one number to each number for which we are finding a square and the differences. So 2, 3, 4, 5, 6, 7, and similarly 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this is the pattern. So 13 will be the answer. So this is question 19. Find the number which would come in place of question marks 1, 7, 37, 187, and 937. Then question mark. That is a blank space. We have to fill this number out of these four. तो इन चार में से एक सही उत्तर है जिसे छांट के हमें यहाँ लिखना है और नंबर जो दिए हुए हैं वो है 1, 7, 37, 187 और 937। तो हमें गणना करना है कि ये सब कैसे आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट हाउ दे हैव अराइव्ड एट दीज नंबर्स एंड व्हिच नंबर शुड बी द नेक्स्ट नंबर। सो नाउ लेट अस कैलकुलेट। So there are two ways to calculate this number. So first of all, as we observe, if we multiply 1 by 5 and add 2, we get 7. And same pattern, if we follow, we get all these numbers. That means 7 into 5, 35, 35 plus 2, 37. 37 into 5 is equal to 185 plus 2, 187. 187 into 5 is equal to 935 plus 2, 937. 937 into 5 is equal to 4685 plus 2 is equal to 4687. So the answer should be 4687. That is option A. Now the next method, if we subtract the consecutive numbers, that means 7 minus 1, 6. 37 minus 7, 30. 187 minus 37, 150. 937 minus 187, 750. So as we observe, these are in ascending order and the next number is multiplied by 5. So 6 5 the 30, 30 5 the 150, 150 5 the 750. तो यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ है ये नंबर्स जो है इनका हमने अंतर निकाला। तो आगे पीछे आने वाले जितने भी नंबर थे सबका अंतर निकाला तो देखिए वो इस तरह से आया। दूसरे में से पहला घटाया तो 6 आया,
तीसरे में से दूसरा घटाया तो 30 आया, चौथे में से तीसरा घटाया तो 150 आया, और पांचवें में से चौथा घटाया तो 750 आया। तो ये नंबर जितने भी है हम देख रहे हैं कि हर नंबर में अगली बार 5 से गुणा होता जा रहा है। 6 में 5 से गुणा किया 30, 30 पंजे 150, 150 पंजे 750। तो यानी कि मतलब क्या है कि अगला जो नंबर हम निकालेंगे तो 750 में फिर 5 से गुणा होना चाहिए। तो हम गुणा जब करेंगे 750 में 5 से गुणा करेंगे 3750 आएगा। तो नंबर होगा 937 प्लस 750 यानी 4687। So if we take all the differences, that means 7 minus 1 6, 37 minus 7 30, 187 minus 37 150, 937 minus 187 is equal to 750. So as we find, all these numbers are increasing 5 times. 6 5 the 30, 35 the 150, 155 the 37. So next multiple should be 37 5 the, that is 3750. So the number should be 937 plus 3750, that is 4687, and that is option A. इसलिए A ही सही उत्तर होगा। This is question number 20. Find the number which would come in place of question mark 1 5 19 81 and then question. So in this place we have to fill one number out of these four, that is 405 411 400 395. तो देखिए दिए हुए नंबर हैं 1 5 19 81 और खाली स्थान जिस पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो इस खाली स्थान पे इनमें से दिए गए 4 नंबर में से एक छांट के लिखना है। तो इसके लिए अब हमें गणना करना पड़ेगी। तो इसकी गणना करने के लिए देखिए हमने यहाँ पे ये नंबर्स लिए और इसमें आपस में जो ताल्लुक है ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 1 और 5 के लिए वैसे देखने में सीधा संबंध नहीं लगता है, तो थोड़ा गुणा भाग करना पड़ेगा। तो 1 में 2 से गुणा किया और उसके बाद 3 जोड़ दिया तो 5 हो गया। अब अगले नंबर में 3 से गुणा करेंगे और 4 जोड़ेंगे, 5 दिए 15 4 19। फिर अगले नंबर में देखिए यहाँ 2 से किया था, यहाँ 3 से, यहाँ 4 से करेंगे, 19 चौक 76 और 5 81। अब यहाँ 4 से किया था, 5 से करेंगे, 81 पंजे 405 और 6 411। तो इस तरह से इसमें दो ऑपरेशंस लगाना पड़ता है। तो दो विधियां लगाने के बाद यानी गुणा और जोड़ दोनों लगाने के बाद ये मिलता है। तो यहाँ पे अगला नंबर 411 होना चाहिए। So in this question we have to use two operations, multiplication plus addition. So to get 5, we have to multiply 1 by 2 and then add 3. So we'll get 1 to the 2 plus 3, 5. Now 5 multiplied by 3 and added by 4. So here it was 2, now we have increased it by 1 and similarly increased 3 by 4. So 5 3 the 15 plus 4 19. 19 4 the 76 plus 5 81. 81 5 the 405 plus 6 411. So we are increasing these numbers, the multiples 2, 3, 4, 5, and similarly we are adding the numbers which are added. So 3, 4, 5, 6. So by this pattern we get the next number should be 411. तो अब यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। तो यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चंस हो गए। अब नए वीडियो के साथ में और आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा। So we'll meet soon after a new video. We have completed 20 questions now. Thank you.